Good morning, students. This is the last lecture of radiation. Actually speaking, they should have gotten over last time only, but there are some calculations which are lengthy. And after that, we are starting with a new chapter, kinetic theory of gases. The word kinetic means in motion, gas molecules. So when the gas molecules move, what pressure they exert, what will be the speed, how fast they move, what will be the impact of that. Very, very, very important, because when we breathe, we are taking air. Air, as you know, is 78% nitrogen, 21% oxygen. That means these gas pressures play very, very important role on our body also. Our body also is comprising of a lot of fluids like cerebrospinal fluid, urine, blood, etc. So those pressures also, they have to be in accordance with the surrounding air pressure. Because if there are much variations in this pressure, that means our body is in trouble. Okay. Now please let me know before I start with kinetic theory of gases. Radiation बेटा assignment 1 में कुछ भी pending नहीं था, check कर लो. जो भी pending आज सब बोलो, right? And what I will do is today, maybe after all my lectures are over, I will just get one PDF prepared from some external book, maybe like Pradeep or some other book, so that you get some extra practice. Marvel तो आप लोगों ने already कर लिया अभी. Marvel you already have, right? All of you, correct? Radiation assignment 2. Between 1 and 20 was anything pending? Please check. मुझे लग रहा है तब तक सिर्फ सोलर कांस्टेंट के क्वेश्चन अभी बाकी है, राइट? Between 1 and 20 assignment 2 was anything pending? 21 and 40. 21 and 40 was anything pending? Sorry? 40? Okay. I said wait. हाँ वो बेटा अभी नहीं कर सकते बिकॉज उसमें हैवी इंटीग्रेशन है. उसमें हैवी इंटीग्रेशन इसलिए होल्ड पे रखा हुआ है. और मैथ्स के स्टूडेंट्स ने भी इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया, तो मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ में आने वाला है. बायो वालों को तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है. बायो वालों के लिए पूछेंगे भी नहीं. बायो वाले के लिए ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. सो बायो स्टूडेंट्स यू कैन इग्नोर दिस. मैथ्स स्टूडेंट्स यू राइट ओवर देयर, वेट फॉर इंटीग्रेशन. और ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है. बट एनीवेज, जब इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, लेट मी नो, आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम. And probably by that time you will do so much of integration कि you will not need me also. You will do it on your own. चलो, 41 to 45 में कुछ pending था बेटा? 42nd वाला. The rate of cooling of two different liquids. Underline two different liquids. इसका मतलब बेटा उनका रो सेम नहीं है. रो उनका रो सेम नहीं है और उनका C भी सेम नहीं है. करेक्ट? Now they are put in exactly same calorimeter and kept in identical surrounding, right? उनका rate of cooling same होना चाहिए. Now ध्यान से देख, question number बोल वापिस. 42. Assignment 2, question number 42. Do we know d theta by dt is equal to k dash times theta average minus theta 0. अब उनको ये सेम चाहिए, ये उनको सेम चाहिए. Rate of cooling for two liquids सेम चाहिए. You know that k dash is k upon mc, yeah, times this is delta theta, excess of temperature. ये भी सेम हो गया बाय डिफॉल्ट, ये सेम हो गया. डू यू एग्री विथ मी? क्योंकि उन्होंने सेम सराउंडिंग में रखा है बॉडी को, टेम्परेचर भी ऑफ द बॉडी भी सेम है. ये उन्होंने सेम चाहिए उनको, राइट? नाउ कैन आई से दिस इज k अपॉन रो v c. आर दे डिफरेंट लिक्विड्स? ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये सेम नहीं होगा. इट इज समथिंग लाइक बेटा, मैं दो कंटेनर में, एक में ऑयल ले रहा हूँ और एक में कैरोसिन ले रहा हूँ. दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग है. अभी मुझे उनको सेम रेट पे कूलिंग करना है, राइट? या तो सेम टेम्परेचर तक कूल करना है. दोनों का रेट मुझे सेम रखना है, सपोज 1.2 डिग्री पर मिनट, तो मुझे वॉल्यूम अलग अलग लेना पड़ेगा. आर यू गेटिंग दिस? अब जैसे कार के रेडिएटर में हम लोग पानी डालते हैं, एक्चुअली कूलेंट भी डालना चाहिए, बट कूलेंट हम लोग एवरीडे चेंज नहीं करते. मतलब कभी गाड़ी एकदम गर्म हो गया तो पानी भी डाल दिया तो चलेगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई. बाद में 1-1.5-2 महीने के बाद जब गाड़ी वर्कशॉप में जाती है सर्विसिंग के लिए, तभी वहाँ से टेक्नीशियन का फोन आता है कि सर कूलेंट चेंज कर दूँ क्या? तो इट इज एन एक्स्ट्रा केमिकल, मीन्स योर कार इंजन इज सेफ. अभी समझा बेटा? श्योर? ओके. 43 to 45 में कुछ पेंडिंग था. 43 to 45. अब इसमें 45 के ऑप्शंस देखते हैं. 45 के ऑप्शन देखो. वो लोग ऑप्शन ज्यादातर ये स्टाइल में देते हैं. 45, 1.59, 15.9, 0.159, 159. इसका मतलब हम लोगों को 159 में कुछ मैजिक करना ही नहीं था. We just had to see the power of 10.
ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 53 के ऑप्शंस एकदम वियर्ड है। ये ऑप्शंस नहीं दे सकते वो लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रीजन बोलता हूँ, 47 81 वॉट दिया और 81.2 वॉट भी दिया है। अभी स्टीफन्स कांस्टेंट के कोई भी क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट सिग्मा को 5.67 ले सकता है, कोई स्टूडेंट 17/3 ले सकता है, कोई स्टूडेंट 5.7 ले सकता है राउंड फिगर, कोई स्टूडेंट राउंड ऑफ करके 5.5 ले सकता है, 6 भी ले सकता है। तो दे कैन नॉट गिव यू दिस ऑप्शंस। सही 80 5.7 दिया है, फिर भी बेटा इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं दे सही सकते। इंटीजर में दे सकते हैं ना। इंटीजर में दे सकते हैं। 5.7 लेके एक्सेस कैसे करता हाँ, तो कितना 81 आ रहा है, एकदम 81 नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा इसका जो ऑप्शन सी है ना उसको चेंज करके 18 करो। 18 फर्स्ट इज 81, सेकंड इज थर्ड वन इज 18। लाइकवाइज 53rd क्वेश्चन देखो, 53rd उसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1515, सेकंड ऑप्शन है 2626, फोर्थ ऑप्शन है 2616। अभी सोचो हम लोग फोर्थ रूट लेने वाले हैं टेम्परेचर निकालने के लिए, तो उसमें इतना क्लोज ऑप्शंस नहीं दे सकते हैं, राइट। एज पर द लेटेस्ट बुक्स, लास्ट 10 years का बुक्स अगर आप लोग देखोगे ना, जब से JEE मेंस आया है, 2014 में JEE मेंस आया, तभी से दे विल कीप अ मार्जिन ऑफ एटलीस्ट 200 to 300 केल्विन इन दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर्स। द न्यू ऑप्शंस आर 53 में न्यू ऑप्शंस लिखो प्लीज। 1016 केल्विन फर्स्ट ऑप्शन, 1016, सेकेंड ऑप्शन 2016, थर्ड ऑप्शन 1516। कोई बैच में चली जा, रिकॉर्डिंग चल रही है, और कोई बैच में चली जा सकती है, थर्ड बैच में आ जाएगी, रिकॉर्डिंग चल रही है। थर्ड ऑप्शन इज 1516 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2616। आई रिपीट 1016, 2016, 1516, 2616। तो अप्रोक्सीमेटली 500 केल्विन 600 केल्विन का फर्क आया सब में। रीजन, अपना टाइम पहले फॉर्मूला लिखने में वैल्यूज में जाने वाला है। इवन इफ इट इज JEE मेंस जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिनट्स मिलता है पर क्वेश्चन, उसमें भी कैलकुलेशन में उतना टाइम जाता ही है, बट दे हैव टू गिव रीजनेबली फार ऑप्शंस। रीजन, दे आर नॉट गिविंग यू लॉग बुक, दे आर नॉट गिविंग यू कैलकुलेटर ऑल्सो। एग्जामिनर का खुद का एग्जैक्ट उतना आंसर नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? सो नाउ टेल मी वन बाय वन व्हाट ऑल क्वेश्चंस वर पेंडिंग। वाज 47th पेंडिंग? यस सर, 47. A bulb made up of tungsten filament of surface area 0.5 square centimeter. अभी बेटा 47th से भी बेटर क्वेश्चन है 53rd। 47th में भी फिलामेंट वर्ड बोला है उन्होंने, 53rd में भी फिलामेंट वर्ड बोला है। What is the shape of the filament by the way? Is it cylinder? Is it cylinder? अभी अगर मैं बेटा ये वायर लेता हूँ और अगर ये हॉट वायर है तो इसका एरिया विच रेडिएट्स हीट इज 2πRH प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। लेकिन हम लोग जब फिलामेंट की बात करते हैं जो बल्ब के अंदर है तो उसका बेटा ये एरिया और ये एरिया ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज वन इज गोइंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई एंड अदर इज गोइंग टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। दैट मीन ओनली द कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर विल लिबरेट हीट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मैं डायग्राम के साथ ड्रॉ करके दूंगा क्वेश्चन 53 में। क्वेश्चन 47 में प्रॉब्लम नहीं है। रीजन, उन्होंने सीधा सीधा एरिया का वैल्यू ही दे दिया है, हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन 53 ध्यान से देखोगे ना, फिलामेंट वर्ड उसमें भी है, लेकिन वो सब में उन्होंने रेडियस और लेंथ दिया है, चेक करो। तो 47 से बेटर क्वेश्चन है 53, राइट। मैं दोनों सॉल्व करता हूँ, बट 53 इज लिटिल मोर डिफिकल्ट। 47, a bulb made up of tungsten filament of surface area 0.5 square centimeter. Question number please, 47. Assignment number 2, question number 47. Area of the filament is 0.5 square centimeter. इसका मतलब half into 10⁻⁴ square meter. This is a filament in the bulb. Next one, they have given me, it is heated up to temperature 3000 Kelvin. That means temperature is 3 into 10⁻³ Kelvin. Temperature is 3000 Kelvin. When it is operated at 220 volts. अब ये 220 volts सिर्फ इसलिए दिया है just to tell you कि we are using the principle of heating effect of electric current. When current is passed through the tungsten filament, filament becomes hot and that's why it starts liberating wavelengths. Emissivity of the filament is 0.35. मतलब वो V वोल्ट दिया है उन्होंने 220, लेकिन उसका यूज नहीं है, कुछ दिया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बट इसका कोई यूज नहीं है। Emissivity is 0.35. Emissivity is 0.35, that means 35 into 10⁻².
Sigma is 5.7 into 10 to minus 8. So for my convenience, can I write sigma as 17 by 3 into 10 to minus 8 SI units? What is the formula for power? Is it Q by T? Is it E sigma A T raised to 4? So can I say Q by T? पूछा है ना, Q by T ही पूछा है. It is E 35 into 10 to minus 2. This is 17 by 3 into 10 to minus 8. Area half into 10 to minus 4. And this is 3 into 10 to 3 raised to 4. बराबर? तो आप लोग जब ये कैलकुलेशन करोगे ना, आपका आंसर 80 से 100 के बीच में आएगा, 70 से 90 के बीच में आएगा. So I don't need to waste time on calculations because 53rd is better. 47th में आप लिखो बेटा, 47th में आप लिखो. Don't start copying with me. I'll give you enough time to copy both the sums. 53rd is a better one. ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो. 53rd. It is again a filament. It is again a filament. Now what is the mechanism of the electrical bulb? This is the electrical bulb. Okay, and there is a tungsten filament inside. Now this end of the filament is connected to the positive terminal of the supply, and this end of the filament is connected to the negative terminal of the supply. That means this end points of the filament, they are blocked. If this is the filament, this is going to the positive terminal and this is going to the negative terminal. That means the free area which is going to liberate heat is only the curved area of the cylinder, right? So if I understand the filament inside this, then can I say filament का curved area? Thank you. Filament का curved area is 2 pi RL, and it is the curved area which is going to liberate heat. It is the curved area which is going to liberate heat because this portion is connected to the neutral terminal of your electric circuit, and this is connected to the live terminal or other way, whatever, no problem. It is something like if this is a 3-pin plug and suppose your 2-pin socket is going, this is live, this is neutral, this is earthing. Yes or no? So these areas are blocked, they don't liberate heat. Otherwise I should have taken the area of the cylinder as 2 pi r bracket r plus L. Curved area plus flat area plus flat area. But flat areas are not participating in liberation of heat. Remember that. So what is Q by T over here? It is E sigma A T raised to 4. Same formula. Why previous one was easy? Because area was given directly. Why this one is tricky? Because area is not given directly. So this is very important part. 2 pi r L. It is the curved area of the cylinder. It is the curved area of filament, which is cylindrical, of course. It is curved area of filament or cylinder which emits heat. Which emits heat. Which emits heat. Not the entire area. And not the entire area. Because as per the formula, actually speaking, it is the area which liberates heat. Right? So the total area of the cylinder is 2 pi r plus F. We don't have to take that. अच्छा, इसमें Q by T शायद दिया होगा. Correct? कितना दिया है? 100. Check करो please. Emissivity 0.8. Can I write this as 4 by 5? Sigma, can I write this as 17 by 3 into 10 raised to minus 8. 2. Pi is 3.14. Right? इसको मैं ले लेता हूँ 22 by 7. Easy पड़ेगा. Radius of the wire? 6 into 10 raised to minus 5. वो diameter कितना बेटा? diameter कितना? मीटर सेंटीमीटर. तो एनीवेज मैं चाहता तो मैं 2r को डायमीटर लिख सकता हूँ. बोलो क्या तो अभी मैंने लिख लिया तो मैं रेडियस ले लेता हूँ, है ना? दिस इज 6 into 10 to minus 5. I'm so sorry. Okay, length 0.1. 0.25 मीटर. 1/4. अब बेटा ये कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. दिस इज t raised to 4 ऑफ कोर्स, है ना? एक बेसिक लेवल तक लेके आओ. एक बेसिक लेवल तक लेके आओ कि t raised to 4 कितना आता है. उसके बाद में मैं कैलकुलेशंस करता हूं. t raised to 4 ये सब कट करने के बाद कितना आता है मुझे जरा
बोलो लास्ट फ्रैक्शन ट्राई करना न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ट्राई करना न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर चलो बेटा ये सम्स कॉपी करो हाँ मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ इसकी कैलकुलेशन एक बेसिक लेवल तक आ जाओ एंड लेट मी नो तो जो अंदर का जो वही टंगस्टन फिलामेंट अंदर का जो कॉइल है ना आपने जो टोका वही टंगस्टन फिलामेंट करेक्ट वही सिर्फ ये हीट लिबरेट करेगा इधर भी बना के दे देता हूँ बेटा ये पार्ट ब्लॉक हो गया ना तेरा पावर ऑफ 10 जब लाओगे ना बेटा उसको परफेक्ट फोर्थ पावर रखना बिकॉज यू हैव टू टेक फोर्थ रूट ये जब पावर ऑफ 10 लाओ जब भी जो भी कैलकुलेशन आएगा ना उसमें 10:12 अलग से रख या तो 10:8 and make sure that numerator is little greater than denominator for making the calculation simple So approximately 4.3 into 10 power 12 आएगा नहीं 4.39 ऐसा कुछ आएगा उसका फोर्थ रूट 9 उसका फोर्थ रूट आराम से देखो बेटा गाई मत करो सर 1516 ऐसा कुछ आएगा कम हो गई 1516 आएगा into 10 is sure नहीं 1516 केल्विन आएगा आंसर 2000s में आ रहा है आंसर आंसर दिल्ली आ रहा है तेरा टीरियस को 16 का 4 रूट आ रहा है तो मैं अकॉर्डिंगली हाँ तो 16 का 16 का 4 रूट वो आ सकता है हाँ तो 2 पॉइंट समथिंग बराबर ना फिर तुम लोग मुझे टीरियस को 4 तक आ जाओ अब मुझे वो लास्ट सेक्शन बोलो क्या Options 2616 2626 है नहीं बेटा चेंज करवाया मैंने क्या करवाया तू क्या है दक्ष चेंज करवाया मैंने चारों ऑप्शंस चेंज तो करवाया सॉरी कंफ्यूज करने के लिए जस्ट टू टेल यू दैट इट इज VIT or I2RT or V2T upon R to heat the film. I told you na voltage is given just to tell you that it is heating effect of electric current. Otherwise it is of no use. सर तो कभी वो लोग टेम्परेचर ना लेके वोल्टेज और करंट दे देंगे हम लोग को ढूंढने को बोल देंगे हाँ लेकिन उसके लिए करंट हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का mix- चैप्टर होना चाहिए मिक्स करके दे सकते हैं मिक्स करके ही देते हैं ऐसे। JEE में तो I पक्का square। मिक्स करके ही देते हैं जरा मुझे बेटा लास्ट स्टेप क्या आएगा जरा मुझे बोलो हाँ इधर नहीं ये मुझे क्या आ रहा है 10 to something 10 to 12 आ रही है समथिंग into 10 to और ये नंबर क्या आ रहा है नीचे ऊपर 3500 आएगा 3500 upon 35 अपन साइड 2.13 something 2.13 के आसपास आ रहा है ये नंबर फिर भी मुझे जरा श्योर आंसर चाहिए बिफोर आई टॉक अबाउट द फोर्थ रूल upon 8 to 10 is to 13 है इसलिए एक डेसिमल हाँ एक डेसिमल शिफ्ट करो बराबर है 4 point something 4 point something का फोर्थ रूट ये भी वही आएगा 40 60 बाद में 40 हो जाएगा एक 10 का पावर हाँ 40 समथिंग आ रहा है सर तो 6 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट आ जाएगा थोड़ा टाइम सेव करके जब तक तुम लोग कॉपी करते हो खाली मैं फ्रैक्शन लेके आता हूँ 3500 upon 740 43.9 आएगा 43
45 into 10 का 45 43.9 उसका 4 छोटा रहेगा मतलब और ये 10 to 12 ठीक है ना? हाँ 45 Okay, so t is equal to 4th root of 45 into 10 raised to 3. 6.5 का स्क्वायर Right? 6.5 बराबर है 36 और और 2 और 49 के 3 के बीच बीच में So the answer is coming as 2 point something. Your answer is coming as 2 point something. So answer is coming as last option. मैंने बोला वैसे एग्जाम में वो लोग इतना क्लोज ऑप्शन नहीं दे सकते जैसे पुराना ऑप्शन था ना 2616 एंड 2626 नॉट पॉसिबल दे विल नॉट गिव यू सो लेट अस गो बैक सर 47 का आपने बोला था चेंज करा दें उसमें आपने बोला ना एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं ना तो 81 से कम आता है थोड़ा मतलब नियरेस्ट इज एग्जैक्ट 81 कैलकुलेट करते हैं 80.3 हाँ बराबर है नियरेस्ट इज 81 मतलब 81.2 डिस्कार्ड कर सकते हैं 809.595 आया है कुछ तो उसमें हम लोग 81 ले सकते हैं 81.2 वैसे भी 80 से ज्यादा होगा ओके सो मैंने 47 और 53 बैक टू बैक किया 47 वाज इजी बिकॉज़ एरिया वाज गिवन स्ट्रेट अवे for 53 was tricky because area of the filament should be taken as only that area which liberates it not the entire area of the cylinder was 48 pending 48 must question beta 5 star mark karo very good question आज के क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन थोड़े लेंथी और ट्रिकी है there are two liquids of same volume underlying same volume are cooled under the same conditions from 65 degree to 50 degree that means temperature fall is 15 temperature fall and the average temperature is 57.5 65 और 50 का average the time taken are respectively 200 seconds and 480 seconds obviously there are two different liquids तो उनका specific heat same नहीं है मतलब rate of cooling same नहीं हो सकता है एक को ज़्यादा time लगता है the ratio of specific heats is 2:3 then the ratio of the densities is just tell me the data one by one question number please 48 there are two liquids 1 and 2 there are two liquids 1 and 2 there are two densities two specific heats इनका स्टार्टिंग टेम्परेचर सेम है एंड टेम्परेचर भी सेम है मतलब डेल्टा थीटा सेम है राइट इसको टाइम लग रहा है 200 सेकेंड्स इसको टाइम लग रहा है 480 सेकेंड्स यू आर एक्सपेक्टेड टू कंपेयर व्हाट स्पेसिफिक हीट का रेशियो कितना दिया बेटा C1 upon C2 is 2/3 ρ1 upon ρ2 पूछा है शायद बराबर डोंट स्टार्ट विथ मी प्लीज कंसंट्रेट और उन्होंने ये भी बोला है कि द रेट ऑफ कूलिंग इज द सेम द रेट ऑफ कूलिंग इज no rate of cooling cannot be the same can I say d theta by dt is k dash times theta average minus theta 0 इसका मतलब d theta upon dt is equal to k upon mc times delta theta d theta is 65 to 50 मतलब 15 upon 200 पहला लिक्विड is equal to k upon इसको और एक फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं k upon rho vc delta theta so this is 15 upon this is k upon rho 1 v1 c1 delta theta let us call this is equation 1 and 15 upon 480 is equal to k upon rho 2 v2 c2 delta theta equation 1 upon equation 2 should give me my answer. Equation 1 upon equation 2 should give me my answer. 480 upon 200. 15 gone. K dash gone. Is it? उनके वॉल्यूम सेम है. वॉल्यूम सेम है. शायद के ऐसे ही जा सकता अरे रुकना रे बाबा हर्ष तो बीच में बोलते हैं रुकना जरा 480 upon 200 is rho 2 v2 c2 upon rho 1 v1 c1. Yes or no? V1, V2 gone. This is 2 by C1 is 3 by 2 12 divided by 5 is equal to rho 2 upon rho 1 पूछा है and the C2 upon C1 उल्टा ratio 3 by 2 so can I say rho 1 upon rho 2 should be 3 by 2 into 5 by 12 that means it should be 5 by 8 that means it should be 5 by 8 सर डिफरेंट लिक्विड्स के लिए T डैश अलग होगा ना K कांस्टेंट
k तो कांस्टेंट ही रहेगा। K dash K है ना? सेम आता है। dq by dt को हम लोग लिखते थे k टाइम्स थीटा एवरेज माइनस थीटा 0। बाद में dq by dt को m से d थीटा by dt लिखते थे। k सेम रहेगा, m और c चेंज हो जाएगा। सब लिक्विड्स के लिए K सेम होता है। k तो तेरा बेटा dq by dt से आया था। k तेरा dq by dt से आया था। What was the first statement of Newton's law? dq by dt is proportional to theta average minus theta 0. बराबर? That means dq by dt is some constant of proportionality k times theta average minus theta 0. बाद में हम लोगों ने बोला था कि but dq by dt is mc d theta by dt. उसी से आया था ना ये फॉर्मूला। This is k times theta average minus theta 0. बाद में हम लोगों ने mc शिफ्ट किया था। Therefore d theta by dt is k upon mc डेल्टा थीटा। तो k तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वो तो तेरा आगे से ही चला आ रहा था। हम लोगों ने बोला था k dash is k upon mc. Depends on mass. तो k is fixed. m and c. c will differ because liquid is differing. Rho will differ because m can be written as rho v. समझा? So k is constant. K dash is not. K is constant. K dash is not. Question 48 समझा सबको? Was 49 pending? 50? Yes. Okay. Finish 48 first. अच्छा क्वेश्चन था ये। कोई मार्क करो। अभी तक जो क्वेश्चंस किए उसमें तीनों टफ थे। 47, 50, 53. Calculations wise, concepts wise. 47, 48. This was 40. Shall I rub only the left part, only the data wala part, this one? Shall I rub up to equation number 2? Equation number 2 now. Question number 50 is about solar constant. The formula which we talked about is the general formula for all the planets. What is it? Solar constant is given by sigma times capital R upon small r the whole square times t raised to 4. Where what is the meaning of capital R? It is the radius of sun. But what is the meaning of small r? It is distance between
सन एंड दी प्लैनेट में बोलूंगा, प्लैनेट, बिकॉज ये क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, मर्क्यूरी के लिए सोलर कांस्टेंट पूछा है, तो हम लोगों ने जो सोलर कांस्टेंट लिखा था that was a standard value. What is solar constant for earth? Was it 1400 joule per meter square per second? याद करो बेटा, एक हाइब्रिड यूनिट में लिखा था 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब ये हाइब्रिड यूनिट था। यस और नो? उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सोलर कांस्टेंट फॉर अर्थ इज 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। Distance between Mercury and the Sun is 0.4 times distance between Mercury and Earth and Sun. Mercury is the closest planet. My very educated mother just showed us 9 planets. So Mercury, Venus, Earth. तो पहले Mercury आता है, बाद में Earth आता है. Yes or no? So distance of Mercury from Sun is 0.4 times distance of Earth from Sun. You are expected to find out solar constant for Mercury. Solar constant पे बेटा इतना सीधा क्वेश्चन आता है. I will tell you, even in competitive exams, because calculations wise you cannot calculate all this and get the exact answer of surface temperature of the sun is 5900 Kelvin. उसके लिए फिर calculator चाहिए या तो computer चाहिए, right? Now can I say solar constant is inversely proportional to square of distance? That means solar constant for Mercury upon solar constant for Earth is distance of Earth upon distance of Mercury का square. Because बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, रेडियस ऑफ सन कैन नॉट चेंज, सिग्मा कैन नॉट चेंज, टेंपरेचर ऑफ सोलर सरफेस कैन नॉट चेंज। दैट मींस सोलर कांस्टेंट फॉर मर्क्यूरी अपॉन वैल्यू 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अर्थ, लेट अस कॉल दिस इज r, डिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी इज 0.4 r, उसका स्क्वायर, r इज गॉन, सो sm अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मैं 2/5 लिख रहा हूं, उसका स्क्वायर, सो कैन आई से sm अपॉन 2 इज 25/4 and therefore SAM is 25 upon 2, 12.5 should be my answer. 12.5 should be my answer. कभी भी उन्होंने एग्जाम में टेम्परेचर ऑफ सन पूछा ना, टेम्परेचर ऑफ सन, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन 5900, कोई कोई बुक में लोग 5800 देते, कोई कोई बुक में 6000 देते। ऑल थ्री वैल्यूज आर अलाउड, ऑल थ्री, बिकॉज दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन which portion of sun you are taking. Sun is not uniformly hot, the way earth is not uniformly hot, sun is also not uniformly hot, so we take average temperature of the sun. तो टेम्परेचर ऑफ द सन रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उसमें यू हैव टू अप्लाई लॉजिकल थिंकिंग। वो मॉक टेस्ट में एक क्लैडिंग का सम था, लाइट का, 2 दिन सम थे वैसे, ऑप्टिकल फाइबर और वो, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। कोई बात, मुझे खाली एक छोटा सा मैसेज डाल दो, आई विल कन्वे टू सत्येंद्र सर और सर नागी सर ऑल्सो, डोंट वरी। मुझे जरा ब्रेक में आके मिलो, जेडब्ल्यू में जो भी बाई चांस नहीं हुआ है मॉक टेस्ट में सर ने डाला सत्येंद्र सर, तो अभी मिलोगे ना बेटा सर को वेडनेसडे को, ब्रिंग इट टू हिज नोटिस, नो प्रॉब्लम। कोर क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई बात। मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन है तो इट्स ओके ना बेटा, पेंडिंग रखने का कि फ्यूचर में काम में आएगा। संडे एग्जाम में हुआ तो वी विल ग्रांट। चलो नेक्स्ट 50 हो गया। अच्छा हाँ, एनीवेज इसका भी मार्क्स में करने वाला हूँ काउंट, करेक्ट। मॉक टेस्ट का मैं रिपोर्ट कार्ड में लेने वाला हूँ, इधर ही लिखा है ना बेटा तुमने, एज एग्जाम लिखा है वो प्रॉपरली। मुझे उसको अभी दिवाली का वेकेशन आया तो मुझे उसको ज्यादा रेडिएशन को प्रोलॉन्ग नहीं करना, बिकॉज नाउ आई हैव टू स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम न्यू चैप्टर, तो मैंने बोला एक आध एग्जाम और ले लेता हूँ। सर सीटी में भी एक सोलर कांस्टेंट का न्यूमेरिकल आंसर, ब्रेक, तो उसमें क्यों नहीं पूछ सकता सोलर कांस्टेंट? न्यूमेरिकल तो सोलर आपने अभी सिखाया ये वाला, करवा रहा है तो ये तो पॉपुलर था। अरे नहीं चलता। ब्रेक में भी हाँ।
कंसीडर ही करने वाला सोलर कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पे नहीं आते लाइक चैप्टर जब शुरू हुआ था ना तब भी किया था हम लोगों ने याद कराओ किधर था इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नहीं सर मार्क्स दो सर मार्क्स दो नेक्स्ट वन दिस वाज 50 क्वेश्चन नंबर 51 मैं इसकी बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 51 then 52 then 56 क्वेश्चन नंबर 51 52 and 56 एकदम टॉप ऑफ द पेज पे लिख के रखो बेटा when temperature of sun is asked when temperature of sun is asked, then we can take the nearest answer between 5800 Kelvin, 5800 Kelvin and 6000 Kelvin, 6000 Kelvin as the average temperature of sun, as the average temperature of sun. Examples, questions 51, 52 and 56. 51, 52 and 56. Option दूर ही देंगे बेटा उसमें. 51 का आपका आंसर आएगा C. इतना क्लोज नहीं देंगे. सेम बोल रहा हूँ बेटा. ये जब भी दिए थे ना इक्वेशंस 51 तो वैसे भी तुम लोग अभी नहीं कर सकते. उसमें आर्ग्यूमेंट लिखो. Wait for the chapter length. Wait for the chapter length. Sub-article, angular diameter. Wait for the chapter lenses and the defects, you can say. Sub-article, angular diameter. Now see what does this mean? When I look at stars and when I look at moon appears bigger in size. It is not that moon is actually bigger in size than the stars, but it is closer to us. So the angle subtended at my eye by moon is bigger than the angle subtended by star at my eye. So that particular concept is called angular diameter. तो अभी तक आप लोगों को हुआ नहीं है वैसे भी. और इसमें जो उन्होंने 32 minutes दिया है ना, that becomes very complicated calculation. 32 minutes दिया है. देखो, angular diameter of the sun is 32. That means angle subtended by the sun at a particular object is 32 minutes. 1 degree is equal to 60 minutes. So you can understand कि 1 degree भी कितना small angle होता है. If I think about protractor, this angle is 90, this angle is 30, this angle is 10, this angle is 1 degree. उसका भी 60th part is 1 minute. Right? So you need to know little high level calculations. So for that you will have to wait for the chapter lenses and then defects. उसमें ये आर्टिकल है. इसको होल्ड पे रखो बेटा. लिखो आर्ग्यूमेंट लिखा. वेट फॉर ऑप्टिक्स, वेट फॉर लेंसेज. Minute is a part of angle over which is angle. diameter 32 minutes. Sorry बेटा. Diameter 32. एंगल हाँ तो इस एंगल के टर्म्स में काउंट किया ना बेटा. तो डायमीटर इज 32 मीटर. मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ. मैं इसके ये पॉइंट को और ये पॉइंट को देख रहा हूँ. This is my eye. So I will see this as the angular diameter. मतलब यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड होता है that is theta. That means this angle is theta by 2. So that's why I am saying better to wait because उसका proper mathematical formula. Question number 52. Very clearly you can check. The value is closer to. Answer is A. Likewise check 56 also. Answer will be Bombay. 52 and 56 आंसर विल बी बॉम्बे. 53 हम लोगों ने कर दिया. कम बैक प्लीज. 54 शायद हो चुका है. चेक करो. 54 हो चुका है. 55 हो गया. 56 हो गया. 57 हो गया. 58 हो गया. 59 टू गुड बेटा. टू गुड. JEE advance because it is more than one answer correct type. This question is more than one answer correct type. Very beautiful question. Don't start with me please. पहले तो लेंथ वाइज ही मार देगा ये क्वेश्चन. आपको फोकस होना चाहिए एकदम. इतना लेंथी पूछा है.
There are two bodies A and B having thermal emissivity 0.01 and 0.81 respectively. That means emissivity of 59th question, JEE advanced, it is more than one answer correct type. Emissivity of body A is 0.01, emissivity of body B is 0.81. The outer surface areas of both the bodies are same. Area of body A and area of body B are same. Let us call this as A. Both are A. The two bodies emit total radiant power at the same rate. मतलब दोनों का emissive power भी same है. Power radiated by A is same as power radiated by B. Let us call this as P, which is Q by T. Power is Q by T. Rate of radiation. अब यहाँ से बेटा खतरनाक सेंटेंस है. The wavelength of B, the wavelength lambda B, corresponding to the maximum spectral radiancy in the radiation from B, is shifted to the wavelength corresponding to the maximum radiancy in the radiation from A by 1 micrometer. The word shift is important. मतलब lambda A और lambda B सेम नहीं है. मुझे दो अलग अलग वेवलेंथ दिखेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है. उनके बीच का डिस्टेंस, that means this is lambda B minus lambda A. या तो lambda A minus lambda B, मुझे नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मुझे नहीं पता है. ये शिफ्ट वर्ड का मतलब समझा बेटा सबको? The wavelength which is because of B is 1 micrometer away from A. That is the meaning of that. Right? This is 1 micrometer. This is 1 micrometer. अब मैं अगर ऑप्शंस देखता हूँ ना, तो मुझे 3 ऑप्शंस में टेम्परेचर दिख रहा है, लेकिन मुझे एक ऑप्शन में वेवलेंथ भी दिख रहा है. मतलब मुझे वेवलेंथ का भी कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज JEE एडवांस. उसमें लिख के आता है मोर देन वन आंसर करेक्ट टाइप. दैट मीन्स एक आंसर आने के बाद यू कैन नॉट बी हैप्पी, यू हैव टू सी वेदर अदर आंसर्स आर मैचिंग. तो इसमें एक बात तो श्योर है बेटा कि मेरा ABC में से कोई एक आंसर आना है. मेरा ABC में से कोई एक आंसर आना है. But then D is about wavelength, na? So I'll have to check that also. Given temperature of A is 5802. Temperature of A is 5802. Right? Temperature of A is 5802 Kelvin. Right? Then I will have to check others. Now check please. Do I know power? Don't start with P. Power is Q by T is equal to E sigma A T raised to 4 is constant. ये उन्होंने बोला है कि पावर इज कांस्टेंट. उन्होंने बोला है कि बोथ रेडिएट द सेम पावर. इसका मतलब E सिग्मा A T raised to 4 is E सिग्मा A T raised to 4 बॉडी A बॉडी A बॉडी A बॉडी B बॉडी B बॉडी B. सिग्मा गया, एरिया सेम है, एरिया गया. यस और नो? सो दैट गिव्स मी एमिसिविटी ऑफ A, टेम्परेचर ऑफ A raised to 4 is emissivity of B, temperature of B raised to 4. That gives me temperature A upon temperature B raised to 4 is emissivity B upon emissivity A. Emissivity B upon emissivity A is 0.81 upon 0.01, which is 81. So that gives me temperature of A upon temperature of B is 4th root of 81, which is 3. अभी मुझे temperature of A पता है. So can I say 5802 upon temperature of B is value 3. That means temperature of B is 5802, right, upon 3, right, which is 1934. तो बेटा स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शंस है उसमें से मेरा एक आंसर मैच हो गया. But then I have to keep in mind Wien's law also. Yes. Because एक ऑप्शन उन्होंने लैम्डा का lambda दिया. equal to B by 2. Can I say TA upon TB is 3? TA upon TB is 3. That means lambda A upon lambda B should be 1 by 3. Yes. इसका मतलब lambda B is 3 times lambda A. Yes or no? Lambda B is 3 times lambda A. इसका मतलब delta lambda, which was mod of lambda B and lambda A, with guarantee can be written as lambda B minus lambda A. Yes or no? Yes or no? That means this is 3 lambda A minus lambda A, which is 1. Which is 1. And therefore lambda A, 2 lambda A is 1. Therefore lambda A is half. Yes or no? Lambda A is half. मुझे lambda B ढूंढना है.
बिकॉज ऑप्शन में लैम्बडा बी दिया है, तो लैम्बडा बी इज 3 टाइम्स लैम्बडा ए 1.5 विच इज 3/2। ये बेटा हम लोगों ने माइक्रोन में सब्स्टिट्यूट किया था, ये हम लोगों ने माइक्रोन में सब्स्टिट्यूट किया था, माइक्रोमीटर, तो ये भी मेरा आंसर माइक्रोमीटर का हुआ। दैट मींस दिस वाज मोर देन वन आंसर करेक्ट टाइप। मेरा आंसर ऑप्शन ए भी है, ए है ना, मेरा आंसर ऑप्शन ए भी है और दिल्ली भी है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर मेरे को फर्स्ट आया होता एज 194 केल्विन फर्स्ट आ गया और सेकंड वाला मैंने वो 1 रॉन्ग कर दिया, मेरा बी मार्क नहीं किया, तो कितना मार्क्स मिलेगा? उसमें वो प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है, पार्शियल पार्शियल मार्किंग होता है उसमें। फर्स्ट करेक्ट है तो लोगों का वो रूल लिखा, मतलब जब जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर देते हैं ना उसमें रूल्स लिखा होता है कि मान ले 4 में से तेरा एक राइट गया, एक रॉन्ग गया, 3 आंसर्स राइट थे, तो तुझे आउट ऑफ 4 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा, बट यू विल गेट पार्शियल मार्क्स। चारों राइट हो सकते हैं। या इट्स नॉट एट माय हां चारों भी राइट ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईआईटी पेपर्स ना, यू कैन नॉट बी हैप्पी व्हेन यू गेट वन आंसर करेक्ट, यू हैव टू चेक ऑल 4। इसलिए मेरा स्टाइल देखना, कभी कभी मैं जब सॉल्व करता हूं मैं ये बोलता हूं कि माय आंसर, माय फोकस इज नॉट ऑन गेटिंग द करेक्ट आंसर, my focus is on proving why other 3 answers are wrong. You should always practice like that, particularly PCM, those who are preparing for JEE mains and advance, you should think like that. चलो बेटा कॉपी करो फटाफट प्लीज। इसके बाद वाला भी थोड़ा सर अगर ए भी राइट है और सी इज राइट बट आई एम नॉट डी, ए भी डी मार्क है तो 4 मार्क है। पार्शियल अच्छा पार्शियल, अच्छा वैसे ही अभी मैंने 4 मार्क का क्वेश्चन है, तेरा पूरा रॉन्ग है -1 मिलना चाहिए, लेकिन तेरा पार्शियल राइट है, अभी 2 मार्क मिला तुझे इसका, लेकिन एक रॉन्ग मार्क है तो 1 मार्क गया, तो 1 मिला। But this you will not get negative ना, partial marking should be allowed actually. It's not that just because you solve the entire problem correctly और एक last step में wrong है और पूरा अपना thought process को 0 दिया, that's not fair actually. You should get proportionate marks. तो इसमें b by d भी यूज कर सकते हैं, वो तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। b by d lambda of b equal to b means बट इसमें आंसर है 1.5 है, इसमें डायरेक्ट है। Boy, उसमें एग्जैक्ट नहीं आएगा, मैंने चेक किया 2.9 into तो Exactly. 1.45 के बीच में कुछ हम उसका सिंपल लॉजिक ये है बाबा, हमने बी नहीं दिया तुमको, तो और तुम एग्जैक्ट बगैर बी के भी निकाल सकते हो, तो फिर क्यों बी ढूंढना है? सिर्फ डेटा रख करो, ओनली द डेटा, ओनली अप टू दिस।
Shall I rub up to this 3? Done? बोल बेटा. 60 Feeling hot ना? Morning में तो मेरी बैंड हो रही सच्ची में? Because I thought AC was down. चलो बेटा. Next and the last before we start with kinetic theory of gases. Question number 50. मालूम वही कर रहा हूँ 60 ही कर रहा हूँ 60 एकदम हट गया एकदम ध्यान से सुनो बेटा इसमें 3 बार डिस्टेंस आएगा हम लोगों ने जब सोलर कांस्टेंट बोला था सोलर कांस्टेंट का मीनिंग क्या था उसमें 2 रेडियस आ रहे थे एक रेडियस था रेडियस ऑफ द स्टार का और दूसरा रेडियस था रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब प्लैनेट की तरह प्लैनेट दिस इज सन डोंट स्टार्ट विद मी प्लीज बेटा थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये दिस इज सन radius of the sun is capital R radius of the sun is capital R this is the planet say earth this distance is smaller हम लोगों ने इसके लिए क्या बोला था सोलर कांस्टेंट इज सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर टाइम्स t रेज़ टू 4 सब लोग बेटा पेज नंबर 104 पे चले जाओ जरा सोलर कांस्टेंट का डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से solar constant page number 104 solar constant is defined as the amount of heat energy emitted by the star per unit area per unit time मतलब सन ने ये जो एनर्जी डिलीवर किया है ये किसके लिए किया है दिस इज सोलर कांस्टेंट एंड दिस इज फॉर व्हाट एरिया कैन आई से दिस इज फॉर एरिया यूनिटी बाय डेफिनेशन then what should be the answer for area pi r naught square अब बेटा ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम ध्यान से सुनो तेरा हाथ ऐसे रख ये बेटा सन है ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये बराबर तेरा फिंगर ऐसे रख या तो तेरा हाथ ऐसे रख चलेगा ये मान लो बेटा अर्थ है इट इज नॉट एज पर द डायमेंशंस अर्थ इज मच स्मॉलर देन सन सो दिस इज सन दिस इज वेयर अर्थ इज राइट नाउ तो अर्थ में भी पूरे के पूरे को थोड़ी एनर्जी मिलेगा उसके एक छोटे से पोर्शन को एनर्जी मिलेगा सपोज दैट पोर्शन इज दिस नकल राइट दैट्स का मतलब ये सर्कुलर एरिया सिर्फ उसको ये एनर्जी मिल रहा है यस और नो सो दैट पर्टिकुलर पैच व्हिच इज हैविंग दिस एनर्जी इज से दिस मच अगर बेटा पूरे के पूरे अर्थ को यूनिफॉर्म एनर्जी मिलता तो फिर वो इक्वली हॉट होता Earth is not equally hot. Here it is very cold. It is very cold. Because anyways, when solar radiations cover larger distance, they become less intense. तो ये जो circular patch है ना, ये जो circular patch है, that circular patch is of radius according to them r naught. तो बेटा उसका एरिया क्या होगा फिर पाई r naught square. अब ध्यान से सुनो. ये मेरा आंसर पर यूनिट एरिया है देन व्हाट इज माय आंसर फॉर एरिया ऑन द अर्थ फॉर अ पर्टिकुलर पैच हुज एरिया इज पाई r naught square तो दिस इज फॉर यूनिट एरिया देन व्हाट इज द आंसर फॉर दिस मल्टीप्लाई बाय पाई r naught square मतलब 3 एरियाज आया समझा 3 एरियाज आया एक एरिया ऑफ द स्टार इटसेल्फ दूसरा एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और तीसरा अर्थ के कौन से पोर्शन पे वो रेडिएशन जा रहा है Yes, so unit area के लिए ये आंसर pi r naught square के लिए क्या आंसर that's why 3 radii capital R radius of the sun small r distance between earth and sun and small r naught is the radius of the patch diagram very very important बेटा ये सेम क्वेश्चन उन्होंने हाई लेवल पे मार्वल में दिया हुआ है लेकिन उसमें डायरेक्ट लिटरेचर लिखते स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कैसे आएगा डायग्राम से इजीली समझ में आएगा रिपीटेशन रिक्वायर्ड बोलो r naught तो अर्थ का रेडियस है ना
अर्थ का नहीं बेटा, अर्थ के जो पोर्शन पे, हाँ तो ठीक है ना, सिंबल चेंज कर दे अकॉर्डिंगली सिंबल चेंज कर दे बेटा। आर नॉट तो रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, तो सर्कुलर पैच का तो कुछ दिया ही नहीं है। तो कुछ नया डिस्टेंस लेने का फिर आर नॉट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एस इज स्टीफन्स कांस्टेंट। हाँ तो अकॉर्डिंगली अपना आंसर चेंज होगा, अकॉर्डिंगली सिंबल चेंज होगा, वो आर नॉट को चेंज करना पड़ेगा। आर नॉट इज द रेडियस ऑफ पैच ऑन द अर्थ, बिकॉज हम लोगों ने स्मॉल आर तो ऑलरेडी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन लिया ही है। हम लोगों ने स्मॉल आर सोलर क्वाड्रेंट में ऑफिशियली डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन लिया है। तो आर नॉट इज दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ व्हिच इज रिसीविंग हीट। एरिया को एक पूरा साइड ले लिया ना, साइड नहीं बोल सकते, Side में सर 1/4 पार्ट लिया, 4 पाई आर स्क्वायर का 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट नहीं बोल सकते बेटा ऐसे। हर जगह हाँ ऐसा तू मतलब डेटा वाइज देखेंगे ना हाँ, तो ले सकते हैं, बट एक्चुअली उतना एरिया पे हीट नहीं आता। अर्थ का पूरा एरिया गिनोगे तुम लोग 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें से 4 कट कर दिया तो पाई आर स्क्वायर पे हीट आएगा, मतलब क्वार्टर ऑफ द अर्थ पे हीट आएगा, वैसा नहीं होता है। इनफैक्ट इफ दिस इज अर्थ, नो, इफ दिस इज अर्थ सपोज, तो इतने ही पोर्शन पे हीट आता है, नॉट इवन 2/3, उससे भी कम। तो ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से 1/4 ले दिया होगा उन्होंने, बाकी सर आपने वो पाई आर नॉट स्क्वायर कैसे लिया, मतलब सर्कुलर पैच ऑन द अर्थ। सर्किल कोई भी बेटा हम लोग स्टार से जब एनर्जी रिसीव करते हैं तो वो स्फेरिकल फॉर्म में ही होता है। अब जैसे ये सपोज सन है, तो इसका जो एनर्जी आएगा मेरे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे मुझे या तो स्पॉट दिखेगा या तो सर्कुलर पैच दिखेगा। सोच, या तो मुझे स्पॉट दिखेगा या तो सर्कुलर पैच दिखेगा। कैन इट लुक लाइक अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल? बिकॉज स्टार्स आर स्फेरिकल। इसकी बात है कभी और कोई रेडिएशन बाकी के रेडिएशन को इग्नोर करना पड़ेगा। When they are talking about this, it is ignoring the radiations from other stars, because anyway see those stars are very very far. Which is the closest star for you? Sun. तो बाकी सब स्टार से रेडिएशन आ भी रहा है, हीट ही नहीं। हाई लेवल फिजिक्स पे इग्नोर नहीं कर सकते, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोलर कांस्टेंट यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस ओनली टू सन। ओके बेटा, अभी नया चैप्टर में स्टार्टिंग का 3 पेजेस is complete revision of what we did in the past in heat 1. And mind you, the chapter which I am starting now, kinetic theory of gases, is very very important for board exam also. अभी जो radiation चल रहा है, kinetic theory of gases चल रहा है, as per the government textbook, there are 12 standard chapters. मतलब आपको thermal expansion में से board exam में कोई कुछ नहीं पूछेगा, calorimetry से कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि वो 11th का portion है. As per the rule, the board का portion is 12 standard textbook. तो इसमें 2-3 derivations ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा important हैं. Normally you have seen that when I take the DCT it is only and only MCQs. But जहाँ पे मुझे लग रहा है कि derivation बहुत ही ज़्यादा important है board exam के लिए, right? I want you to focus on the derivation as well. ऐसा बेटा past में हुआ है, पता चला कि बच्चे का नीट में स्कोर है 690 on 720, बच्चे का सीटी में स्कोर है आउट ऑफ 200 192, मे बी यू नो बॉम्बे टॉप 10 में या तो महाराष्ट्र टॉप 30 में, और पता चला बोर्ड एग्जाम में फ्लंक हो गया 42%. ऐसा हुआ है क्योंकि पूरा 1.5 साल 2 साल फोकस रखा सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे. नाउ यू आर यूज्ड टू डू वेरी फास्ट कैलकुलेशंस, मार्क द बबल्स ओनली, सो यू आर यूज्ड टू वर्ड्स एक्चुअली, एंड नाउ समबडी आस्क्स यू टू राइट द एसे. तो पता चला आता तो है सब कुछ, लेकिन लिखने का कैसे वो नहीं पता होता है. सो इन सम डेरिवेशंस आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि you should have little writing practice also. अब बेटा जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक से ध्यान से सुनोगे, क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूं ये सब हम लोगों ने किया हुआ है in Mayer's relation. Now Mayer's relation you will have to recall again very nicely. Reason, there is one article called degrees of freedom. That means the ease with which the gas molecules move. जब तक मैं बोलूं नहीं बुक बंद. Now, first we are going to talk about the concept of an ideal gas or perfect gas. Right? In the next lecture, there is a full-fledged article where we are going to talk about 10 to 11 points. What are the points which an ideal gas should follow? But today, some very basic points. The gas molecules are very, very small particles. For example, if I think about mass of oxygen molecule, it is in the range of something into 10⁻⁻26 kilogram.
राइट अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में सोचूं, हीलियम के बारे में सोचूं, तो वो और भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं. दैट मींस द मासेस आर वेरी 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 स्मॉल इन द रेंज ऑफ 10 to -26, 10 to -27. हाइड्रोजन एटम के बारे में सोचो बेटा. हाइड्रोजन एटम इज अ प्रोटॉन. प्योर हाइड्रोजन एटम इज one proton, no neutrons and one electron revolving in the circular orbit around the nucleus. Mass of one proton is 1.66 into 10 to -27 kilogram. Right? Mass of one electron is 9.1 into 10 to -31 kilogram. तो अगर मैं इसको 10 to -27 में कन्वर्ट करके ये ऐड करूं, that is as good as that only. That is mass of hydrogen atom. तो अगर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम को मैं ऐड करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी बोलूं, तो अल्टीमेटली उसका पावर तो वही आएगा 10 to 27 के रेंज में, 10 to -27 के रेंज में. So the gas molecules are very 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 small. Now about ideal gas we say that therefore mass of the gas is 0. अब ये बोलने के लिए है. ये अब लोग क्यों बोलते हैं? Because when I take gas in this classroom, can I say volume of one gas molecule is so extremely small that even if I take Avogadro's number, even if I take all the molecules 6.03 into 10 to -26, तो भी उसका टोटल वॉल्यूम उतना नहीं होने वाला है. मतलब अगर ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मैं अभी एक रूम का सपोज वॉल्यूम गिनूं अप्रोक्सीमेटली मे बी 4 मीटर बाय 4 मीटर बाय 3 मीटर, राइट, 48 मीटर क्यूब, सब कुछ गिन के, तो उसके सामने टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी something into 10 to -9 -12 meter cube. So small. That's why we say that they hardly occupy any volume. That's why we say that solids have definite shape and volume. Liquids have definite volume. They take the shape of the container. Gases have neither definite shape nor definite volume. मतलब अब लोग जब गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं, it is the volume available for the gas molecules to move. मतलब बेटा अभी मैं ये क्लासरूम में हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्लासरूम, अब ये क्लासरूम का वॉल्यूम एकदम मैंने आधा कर दिया, ये बीच में पार्टीशन डाल दिया, ओनली दिस मच, आधा का आधा कर दिया, ओनली दैट मच. सो कैन आई से आई एम ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड देयरफॉर आई एम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द डेंसिटी. यस और नो? फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल्स आर सो एक्सट्रीमली स्मॉल दैट दे हार्डली अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. हैव यू हर्ड अबाउट कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप. मैंने एक वाटर ड्रॉप लिया बेंच पे और उसके बराबर बाजू में एक दूसरा वाटर ड्रॉप लिया, राइट, और बाद में पीस ऑफ पेपर से हल्के से स्लाइड किया दोनों को, सो दैट दे जस्ट टच ईच अदर. व्हाट विल यू ऑब्जर्व? अ बिगर वाटर ड्रॉप. दैट मींस देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर ड्रॉप एंड वाटर ड्रॉप टू गिव यू बिगर वाटर ड्रॉप. दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. बट व्हेन यू राइट विद इंक ऑन पीस ऑफ पेपर, व्हेन आई राइट विद मार्कर पेन ऑन पीस ऑफ ऑन द बोर्ड, व्हेन आई pour water on wooden bench, that particular force is called adhesive force. Now these gas molecules, according to gas theory, they are so small that they hardly attract or repel each other, and that's why the potential energy remains practically the same. But mind you, ये भी आगे जाके wrong prove होने वाला है, because ideally nothing is ideal. जब आप इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर नहीं कर सकते हो, which is of the order of 10 to -31, तो आप गैस मॉलिक्यूल्स के मास को कैसे इग्नोर कर सकते हो? मतलब हम लोग ये जो बोलते थे ना PV = nRT, ये तो सिर्फ बोलने के लिए बोलते थे. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. हम लोग बॉयल्स लॉ जो बोलते थे ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, देयरफॉर प्रेशर इनटू वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. नहीं बेटा, आगे जाके इसमें करेक्शन आने वाला. थर्मोडायनामिक्स में इसमें करेक्शन आने वाला कि नो, दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस. रियल गैस के लिए दिस इक्वेशन इज PV⁻γ is constant. And this gamma is nothing but Cp/Cv. याद करो बेटा, एडियाबैटिक रेशियो. मतलब ऐसे बहुत सारे करेक्शंस आने वाले. We are starting with ideal gas equation, right? Then there is a correction to this. Later it is going to be called Van der Waals equation. Then there is a correction to this. Luckily your syllabus is only up to this. उसके बाद में there is an equation called Kämmerling's equation. Kämmerling's equation. उसके बाद में there is an equation called Otto-Hahn-Strassmann equation, diesel engine equation, petrol engine equation. Latest one is Maxwell's equation. And I have been telling you that thermodynamics is the most important branch of physics. Reason, आपका स्पेसशिप है, आपके जो बॉम्ब्स है, आपके जो मिसाइल्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, सब में थर्मोडायनामिक्स यूज होता है.
चेर्नोबिल रिएक्टर के बारे में सुना है बेटा? रशिया, राइट? ऑफ कोर्स न्यूक्लियर रिएक्टर इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया कि उसमें ब्लास्ट क्यों हुआ था, राइट? ये आपको जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं ना, न्यूट्रॉन पोटेंशियल इसमें अल्टरनेट रॉड्स होते हैं एंड दे आर यूरेनियम रॉड्स, दैट मींस दैट इज अ न्यूक्लियर मटेरियल, और उसके बीच बीच में कैडमियम और बोरॉन के रॉड्स होते हैं, बिकॉज when one neutron collides with uranium 235 it gives you barium, krypton and 3 neutrons. एक का 3, 3 का 9, 9 का 27, 27 का 81, 81 का 243. That means the population of neutrons keeps increasing. So boron and cadmium, they have got a property to absorb these neutrons. तो ये जिधर जिधर, मान लो बेटा ये यूरेनियम का रॉड है, ये यूरेनियम का रॉड है, पकड़ इसको, ये यूरेनियम के रॉड्स है, मान लो ऐसे, सपोज ये 64 रॉड्स है, तो इसमें सपोज 30 रॉड्स यूरेनियम के, तो बाकी के 34 रॉड्स कैडमियम या तो बोरॉन के, एंड दे एब्जॉर्ब दिस. अब उसके एकदम एंड पॉइंट पे कार्बन और ग्रेफाइट होता है. तो जब चेर्नोबिल रिएक्टर में वो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन करना था, तो उसका जो पावर है वो 3000 वॉट से नीचे लाके 700 वॉट पे लाना था, तो उन्होंने थोड़ा कैडमियम रॉड्स बाहर निकाल दिया, राइट? अब वो 700 वॉट पे जाने की बजाय 200 वॉट पे चला गया, सीधा एकदम नीचे चला गया. तो दे थॉट कि नहीं, अभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना पड़ेगा, वापिस उन्होंने कैडमियम रॉड डाला, लेकिन कैडमियम रॉड के नीचे का जो ग्रेफाइट था, विच इज अ गुड कंडक्टर, कार्बन, राइट, वो उसके कॉन्टेक्ट में आ गया, एंड द वाटर गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टीम ऑल ऑफ ए सडन, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ ब्लास्ट, राइट? एंड दे से दैट चेर्नोबिल रिएक्टर में जो ब्लास्ट हुआ था, इट वाज 1000 टाइम्स एटलीस्ट डेंजरस देन हिरोशिमा नागासाकी, क्योंकि इसमें जो रेडिएशन का लेवल होता है, पूरा का पूरा आपका जो यूरेनियम मटेरियल था वही बाहर आ गया. तो दैट चेर्नोबिल is closed down, and they have constructed very thick steel walls to close down that nuclear reactor, and that is the threat of nuclear reactor. See, even if this war continues, US does not want कि ईरान के nuclear plants पे ऐसा attack हो, because surrounding all the countries will be affected because the radiation cloud. It is something like, usually the nuclear reactors are, you know, below the floor, right? By chance if earthquake takes place, then it is the most dangerous thing, because that country itself will be affected like anything. Are you getting this? So all these equations you don't have, luckily you have this, and then in the chapter thermodynamics you have van der Waals equation. That means it is correction to ideal gas equation. इधर हम लोग प्रेशर को P बोलते हैं, उधर प्रेशर को P प्लस थोड़ा ज्यादा, इधर हम लोग वॉल्यूम को V बोलते हैं, उधर वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं V माइनस थोड़ा कम. This is equal to nRT, and then what is dP and what is dV, that we calculate in the chapter thermodynamics, right? Next point, an ideal gas is the one which cannot be liquefied under application of any amount of pressure. Normally anything expands or anything contracts on cooling, yes or no? So gas can be liquefied by applying more and more pressure, but if it is ideal gas, it will never be liquefied, and therefore we say that ideally nothing is ideal. हम लोगों ने ये बहुत बार बोला है कि perfectly nothing is perfect, वो खाली बोलने के लिए होता है, राइट? अब आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों को कैसे आया था याद करवाता हूँ. आवर फर्स्ट आर्टिकल वाज बॉयल्स लॉ. मैं जो लिखता हूँ बेटा ध्यान से सुनना, रीजन इट इज अ रिवीजन, राइट? सो फर्स्ट 2-3 पेजेस व्हेन आई मेक यू रीड, you will see cocktail of all this. What was Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume of the gas provided temperature is constant, right? We also call this as isothermal heating. Thereafter Charles law. What was Charles law? Volume of given mass of the gas is directly proportional to absolute temperature provided pressure is constant. Isobaric heating. Then comes Gay-Lussac's law. So what was Gay-Lussac's law? Pressure is directly proportional to absolute temperature provided volume is constant. याद करो बेटा, मैंने बोला था कि these two laws are interchangeable, है ना? These two laws are interchangeable because they were discovered simultaneously, they were suggested simultaneously. So in some books they call this as Charles law and this as Gay-Lussac's law. In some books they call this as Gay-Lussac's law and this as Charles law. That is allowed, right? ये तीनों का कॉकटेल करके हम लोगों ने PV equal to nRT निकाला था, right? Combination of all this, combination of these three laws together, combination of the above laws
above laws was PV equal to nRT. कंक्लूजन याद आया? अब ये n का भी हम लोगों ने मीनिंग लिखा था, याद करो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ n? M upon M, small m upon capital M. उसके बेटा दो मीनिंग थे, अभी मैं स्मॉल m जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ, रीजन स्मॉल m का और एक मीनिंग आने वाला है, नो प्रॉब्लम. कैन आई से वेयर n was Given was what we discussed was small m upon big M. What was numerator? Mass of the gas. And what was denominator? Molecular weight. अभी क्या होने वाला है? Small m is reserved for mass of the molecule. तो इसका सिंबल मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बेटा. इसको मैं बोल देता हूँ m dash और इसको बोल देता हूँ m. या तो अगर मैं इसको कैपिटल M बोलता हूँ तो इसको m नॉट बोलूंगा. Mind you, this is variable. This is examiner's choice, and this is fixed. Do you agree with me? yes. Molecular weight of the gas नहीं बदल सकता है, करेक्ट? तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, याद करो. What was 1 kilomole of hydrogen? What was 1 kilomole of hydrogen? Was it 2 kilogram of hydrogen? Yes or no? What was 1 kilomole of helium? Was it 4 kilogram of helium? What was 1 kilomole of nitrogen? Was it 28 kilogram of nitrogen? What was 1 kilomole of oxygen? Was it 32 kilogram of oxygen? What was 1 kilomole of ozone? Was it 48 kilogram of ozone? फिजिक्स में we prefer kilomole and kilogram. Physics में we prefer kilomole and kilogram. Yes or no? And that's why in general we say 1 kilomole of any gas, 1 kilomole of any gas, do you agree with me, is equivalent to m kilogram of that gas. चेक करो ऊपर का सारा सेंटेंसेस चेक करो, समझ में आएगा. 1 kilomole of hydrogen is 2 kilogram of hydrogen. 1 kilomole of ozone is 48 kilogram of ozone. So 1 kilomole of any gas, either throughout kilomole is molecular weight of that gas. Molecular weight that many kilogram. केमिस्ट्री में क्या यूज होता है? In chemistry, everywhere in place of kilomole they use mole, and in place of kilogram they use gram, right? दूसरा फॉर्मूला क्या था, याद करो. दूसरा फॉर्मूला क्या था? Was it, छोटा n का और एक मीनिंग लिखा था हम लोगों ने, याद करो. Was it number of molecules upon Avogadro's number? Was it number of molecules upon Avogadro's number? मतलब पहले तो ये फॉर्मूला लिखने का मेरे पास एक और स्टाइल आया. What is that? PV is equal to छोटा n बड़ा T, which is mass of the gas upon molecular weight times RT. याद करो, कैपिटल M upon कैपिटल R upon कैपिटल M was written as small r. So was it m dash RT? Right? If PV is equal to m dash RT, that means P is equal to m dash upon V times RT. Very good. P is equal to rho RT. याद आ रहा है बेटा? मेयर्स रिलेशन में ये सब यूज किया था हम लोगों ने. Now meaning number two. When I write n in terms of number of molecules, also what is the meaning of n? It is number of molecules upon Avogadro's number. Again, number of molecules is variable. Second last bench. मुझे ना चालू लेक्चर में चिल्लाना नहीं है, तेरा ध्यान नहीं है बिल्कुल. बाद में रोटे बैठेगा ना, बजाऊंगा तो. Get up. ध्यान किधर है तेरा? नींद आ गई तो घर पे बैठना, इडियट. मुझे नहीं बोलना था ये सब रिकॉर्डिंग में. If you cannot concentrate, leave science. तुम लोग 45 मिनट से ऊपर फोकस नहीं करते तो क्या इंजीनियर बनोगे तुम लोग? आगे जाके इंजीनियरिंग में 3-3 घंटे का एक लेक्चर होता है. प्रोफेसर के पास टाइम नहीं होता, आएगा एक साथ में 3 घंटे का लेक्चर लेगा. समझना है तो समझो, नहीं तो बाहर में जाओ. Take care of that. Sit down. So n upon n0. This is number of molecules
upon Avogadro's number. Again, number of molecules examiner's choice होती है, मतलब ये वेरिएबल है, जबकि Avogadro's number fixed value है. What is Avogadro's number? How much is the value? 6.023 into 10 to 20 molecules per mole. Chemistry. बराबर? N0 is 6.023 into 10 to 26 molecules per kilomole. क्या किया? सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 किया. इसका मतलब PV इक्वल टू NRT में वापिस एक अलग स्टाइल में लिख सकता हूं. PV is equal to NRT can be written as N upon N0 times RT. इसमें मैंने R और N0 को साथ में लिया. याद करो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. याद करो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो कैन आई से PV is equal to N K T, where what is K? K is R upon N0 and is called Boltzmann's constant. ये सब बेटा किया है कि नहीं हम लोगों ने? ये सब किया है कि नहीं? और बाद में आप लोगों ने जैसे यहाँ पे P का इक्वेशन निकाला सिर्फ, वैसे यहाँ पे भी P का इक्वेशन निकाल सकते हो. What is P? Is it NKT upon volume? And then you can compare these two. Left hand sides are same, so right hand sides must be same. समझ में आया? ये सब इंटरकनेक्शंस मालूम होना चाहिए. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लीजैक्स लॉ, कॉम्बिनेशन. उसके बाद में n कैन बी रिटन इन टू वेज, राइट? अच्छा, इसमें भी देयर इज अ वेरिएशन. इसमें भी देयर इज अ वेरिएशन. n which was n0 n upon n0 can be written as multiply and divide by m. multiply and divide by m. वो जो छोटा m में वेरिएशन लाया ना मैं, स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, राइट? इसका मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मास ऑफ द गैस गिवन टू यू. ये सेंटेंस का मतलब बेटा ये होता है, राइट? ऊपर का जो छोटा m इनटू बड़ा n है, दैट इज m डैश, और नीचे का जो छोटा m इनटू n0 है, दैट इज m. That means this is mass of one molecule into number of molecules. That means mass of the gas given to you by the examiner. And this is mass of one molecule into Avogadro's number, which is a fixed value, molecular weight of the gas. समझा? जब भी मैं टाइम दूं, एक चीज ध्यान से पढ़ना प्लीज. उसमें हम लोग खाली प्रेशर के बारे में बात करेंगे ना, तो उसमें भी भयंकर वेरिएशंस है. प्रेशर का यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफिशियल. CGS unit is dyne per centimeter square. Atmospheric air pressure is 1.013 into 10 to 5. Then you will come across one unit called bar. 1 bar is 10 to 5 Newton per meter square. इसका मतलब when I write 1 atmospheric pressure, is it 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square? Is it therefore 1.013 bar? फिर एक टॉर करके यूनिट आएगा. टॉर इज कम फ्रॉम टॉरिसिन. यस, लेटर वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स. आवर बॉडी इज आल्सो फुल ऑफ फ्लूइड्स. व्हेन यू थिंक अबाउट सबमरीन टेक्नोलॉजी, राइट, यू माइट हैव सीन द मूवी गाजी अटैक. तो उसमें बेटा पाकिस्तान का टॉर्पीडो होता है अपने सबमरीन को पॉइंटेड, और कैप्टन बोलता है कि कभी भी टॉर्पीडो आके अपने पे गिरेगा तो अपने को सबमरीन बचाना है. तो कैप्टन ने बोला कि सबमरीन को और 50 मीटर नीचे लेके जाते हैं. तो उसका जो असिस्टेंट कैप्टन होता है वो बोलता है, सर क्या बात कर रहे हो, 350 मीटर्स पे तो अपना सबमरीन में क्रैक आ जाएगा. तो कैप्टन एक ही चीज बोलता है, टॉर्पीडो से मरने ही वाला है, वैसे भी चांस लेते हैं शायद बच जाए. और लास्ट में दिखाते हो लोग कि सबमरीन में क्रैक आता है, बट फाइनली दे वर सेव, क्योंकि टॉर्पीडो से तो पक्का मरने वाला है. दैट मींस व्हेन यू गो अंडर वाटर द प्रेशर इज इमेंस, राइट? अब इसका भी कैलकुलेशन का मेथड है. जब हम लोग बेटा एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर ढूंढते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? P naught is equal to HDG. H is height of mercury, which is 76 centimeter in barometer, 760 millimeter, right? अब जब आप कोई और गैस के बारे में बात करोगे, then in place of barometer
वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर। मैनोमीटर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसमें हम लोग खाली कैपिटल एच यूज नहीं करते हैं, राइट? तो मैनोमीटर में वी यूज द फॉर्मूला एच रो जी, where H is height of mercury in manometer due to that gas. Could be oxygen, could be a nitrogen, could be carbon dioxide, could be sulfur dioxide, whatever. That is manometer. अब अगर मैं लिक्विड के अंदर जाके प्रेशर मेजर करता हूं बेटा, लिक्विड के अंदर जाके, मान लो मैं ये डेप्थ पे हूं, I am here. This is the point of observation. तो जो लिक्विड के अंदर का प्रेशर होता है, that pressure is calculated as H rho G, where H is the depth of that point. आप लोग डी भी यूज कर सकते हो, डी रो जी, डेप्थ ऑफ दैट। जैसे हम लोग सी लेवल से माउंटेन पे जाते हैं तो हाइट ऑफ माउंटेन गिनते हैं, वैसे सी लेवल से नीचे जाते हैं तो हम लोग डेप्थ ऑफ द लेक, डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ द रिवर। फॉर एग्जांपल मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का हाइट इज 8.848 किलोमीटर, 8848 मीटर। मरियाना ट्रेंच का डेप्थ दे आर सेइंग अराउंड 10 किलोमीटर, 10 से भी थोड़ा ज्यादा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। स्टीवन स्पिलबर्ग की एक साईफाई मूवी आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि एक साइंटिस्ट वो डेप्थ तक जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली, तब तक तो आप पूरा एकदम टेर हो जाओगे। सबमरीन सिर्फ 300 मीटर तक नीचे जाते हैं और उसमें क्रैक्स आना शुरू होता है। थिंक अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मरीन लाइफ डाउन देयर। दैट मींस स्मॉल फिशेस कैन, देयर बॉडीज मेड सच कि दे कैन टॉलरेट सच हाई प्रेशर्स। सो व्हेन दे कम आउट ऑफ वाटर दे डाई, right? It is exactly other way around. When we go inside water too much, then because of the pressure we die, tremendous pressure. Are you getting this? तो इसका जो overall pressure होता है, it can be counted as atmospheric pressure plus the pressure at the depth. So P net at this depth will be atmospheric air pressure plus H rho G. So the total pressure. Is that clear? पेज नंबर्स 2, 3 and 4 ऑफ योर बुक। बेटा एक एक वर्ड ध्यान से, आई एम नॉट सेइंग सेंटेंस, आई एम सेइंग एक एक वर्ड ध्यान से, बिकॉज उसके बाद भी मेन टॉपिक शुरू होता है। आपका एक्चुअल चैप्टर शुरू हो रहा है पेज नंबर 4 के बॉटम से। चेक करो, एक टाइटल होगा Assumptions of kinetic theory of gases। लेकिन उसके पहले ये पूरा बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। अब ये पार्ट किधर किया था, मैं याद करवा दूं, किधर किया था, याद करो बेटा। मेयर्स रिलेशन, बड़ा सीपी माइनस बड़ा सीवी इज बड़ा आर, याद आया? Therefore छोटा सीपी माइनस छोटा सीवी इज छोटा आर एंड छोटा आर was capital R upon capital M. I have written it somewhere, capital R upon capital M इधर लिखा है, बराबर ना? दिस इज छोटा, और बाद में इसको हम लोगों ने P by रोटी लिखा था, और मैंने मजाक में बोला था कि देखो सीरीज P by रोटी की जय मींस व्हेन यू डिवाइड बाय J योर आंसर इज इन थर्मल यूनिट्स। तो ये बेटा सारी चीजें वापस आने वाली है अभी। यू हैव गॉट सेपरेट आर्टिकल इन ऑल द बुक्स व्हिच इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम is related to gamma, and that gamma is related to Cp upon Cv, and that Cp upon Cv is related to Mayer relation। मतलब बेटा पूरा हीट 1 में कनेक्ट करने वाला और हीट 2 के साथ, इसलिए आप लोगों को पास्ट नॉलेज भी होना चाहिए। हीट 1 is not in board exam, but heat 2 is in board exam, and both are there in JEE mains also and NEET also, right? Your time starts now, page number 2, 3 and 4। एक एक वर्ड ध्यान से, मैं मेन चीजें हाईलाइट करवा देता हूं। आर यू रेडी विद द हाइलाइटर प्लीज? पहले हाईलाइट कर लो, फिर पढ़ना शुरू करो। पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 4, सब पॉइंट्स। पहला वाला दिखा, P is inversely proportional to V, बाजू में लिखो बॉयल्स लॉ। P is inversely proportional to V दिखा, बाजू में लिखो बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट V proportional to कैपिटल T दिखा, बाजू में लिखो चार्ल्स लॉ, बाजू में लिखो चार्ल्स लॉ। बाद में P proportional to कैपिटल T दिखा, बाजू में लिखो गेल-जैक्स लॉ। एनसीईआरटी में चार्ल्स लॉ कौन सा है? सॉरी, एनसीईआरटी में चार्ल्स लॉ कौन सा है? लेकिन दोनों अलाउड है। नेक्स्ट वन,
आपको एक मेन टाइटल दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है, 1 किलोमोल ऑफ एनी गैस इज m किलोग्राम ऑफ दैट गैस। बॉक्स में दिख रहा है फॉर्मूला, हाईलाइट करो उसको और उसके बराबर नीचे लिखो इन केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री, ये लिखने का, ये किलोमोल विल बी रिप्लेस्ड बाय मोल एंड किलोग्राम विल बी रिप्लेस्ड बाय ग्राम। इन केमिस्ट्री दे नॉर्मली प्रिफर मोल, इन फिजिक्स वी नॉर्मली प्रिफर किलोमोल। दोनों का मतलब एकदम सेम है, बराबर। उसके बाद में बेटा आर का वैल्यू देखो, व्हाट वाज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू? R was 8314 joule per physics per Kelvin. R is 8.314 joule per chemistry per Kelvin. This is 8.4 approximately joule per mole per Kelvin, which is approximately 8.4 joule per mole per Kelvin upon 4.2 joule per calorie. याद करो. So was it 2 calorie पर मोल पर केल्विन? दोनों चलेगा ना बेटा, 2 कैलोरी पर मोल भी चलेगा, 2 किलो कैलोरी। मैंने एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन पूछा था, डीसीटीज में भी पूछा था, संडे एग्जाम में भी पूछा था, मार्वल में भी है। देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु रिकॉर्ड द रीडिंग्स ऑफ सीपी एंड सीवी, बराबर। इनके रिकॉर्डिंग कैसे? सीपी is 6 and CV is 4, CP is 4 and CV is 6, CP is 6 and CV is 5, CP is 5 and CV is 6. Then which student is correct? पहला लॉजिक ये था कि CP is always greater than CV. CP is always, तो ये दोनों बंदे तो गए एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना डफर स्टूडेंट्स। यस और नो? अभी बेटा या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है। CP minus CV is R. CP minus CV is R, मतलब the value should be 2, बराबर। ये मैंने बहुत बार बोला था, समझ में आ रहा है मैं कौन से चैप्टर को कहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, बस वो मेन। ऐसा ना, पेज नंबर 2 बॉटम चेक करो, मैंने जो बोला वैल्यू लिखा है, इज इट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बाद में आइडियल गैस इक्वेशन का, आइडियल गैस का एक प्रॉपर्टी लिखा है कि आइडियल गैसेस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, राइट। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सिर्फ पेज नंबर 2 रिवाइज करो, लाइन से जाओ बेटा, एक वर्ड मिस नहीं करना। मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस भी नहीं, एक वर्ड भी मिस मत करना। किस महान आत्मा के पास बुक नहीं है? मेरे लेक्चर के बाद मैडम आपके पास भी बुक नहीं है, क्यों आते हो क्लास में? Why the hell do you come? Get up. सत्यन की बुक लाए, कोई बात नहीं ना। हमने को मतलब दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है, हम लोग संडे को टाइम टेबल नहीं पढ़ते बराबर से। सब लोग पागल है, संडे फ्री बैठे टाइम टेबल डालने के लिए, पोर्शन डालने के लिए। तुम लोगों के पेरेंट्स भी नहीं पढ़ते, तुम लोग भी नहीं पढ़ते हो। एकदम क्लियर लिखा है, मंडे फ्राइडे नयन सर, वेडनेसडे सत्यन सर, इतना क्लियरली लिखा है। मैं ये सब चीज़ों के लिए नहीं आता, मेरा दिमाग घूम गया ना, पहले देख लूंगा ना, मैं लेक्चर शुरू होने से पहले बता दूंगा। Idiots. बैठो। मुझे कभी कभी लगता है यार मैं तुम लोगों से मैं ज्यादा सिस्टमैटिक हूँ। मेरे सॉल्यूशन लिखने का स्टाइल देखो, एकदम स्टूडेंट की तरह लिखता हूँ। कुछ भी तो ही मुझे पता चलेगा किधर क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, पता चला स्टूडेंट रॉन्ग चीजें पढ़ के जा रहे हैं। हाँ ये मतलब ये सब नयन सर करेगा। हाँ तुम लोगों को एग्जाम देना, मुझे देना एग्जाम, तुम लोगों को देना। Shame on you. बाकी सब चीजों में स्टाइल मार के घूमते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, अच्छे शूज, अच्छा खाना, हाँ मॉल में जाना, ये वो, मोबाइल फोन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। गधे। अच्छा करियर है ना तो ये सब चीजें तुम्हारे पीछे पीछे भाग के आएगी, और अच्छा करियर नहीं है ना तो स्ट्रगल करोगे भिखारी की तरह। मैं ये पब्लिकली बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, सुनो जिसको सुनना है। If you are well educated and self-dependent, all these things will come after you. Be a magnet. Don't be a magnetic material who is attracted by everything. Be a magnet who attracts everything. Idiots.
सबसे वर्स्ट पार्ट क्या होता है मालूम है? 2 घंटे का लेक्चर ले रहा हूँ, उसमें से पौने 2 घंटा मैंने जो अच्छा अच्छा बोला वो कोई नहीं दिखाएगा। ये 30 सेकंड है ना बुढ़ा वो क्लिप वायरल होता है और मैक्सिमम लाइक्स उसको मिलता है। So bad. मुझे सच्ची में कभी कभी हर्ट होता है कि यू जस्ट वांट टू हाईलाइट रॉन्ग थिंग्स। मुझे तो कभी ये भी लगता है मैं चिल्लाया अगर कोई स्टूडेंट को क्या रॉन्ग किया मैंने उसमें, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए ना यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा करियर है, जो भी है, मैं अच्छा काम करूँ, तुम्हारे पेरेंट्स फीस देके जाते हैं, तुम लोग अच्छा काम नहीं करो कौन तुमको जॉब भी देगा, सैलरी तो बाद में बात आती है, और एकदम स्टार्टअप तो एकदम बाद में बात आती है, बिजनेस खोलना तो एकदम दूर की बात है। रुक जा। ये लेक्चर में अपलोड करूँगा, लास्ट का 5 मिनट एडिट हो सकता है, करो नहीं करो। क्या फर्क पड़ता है, अभी कैमरा घुमाता हूँ तेरी तरफ। हाँ बोल। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है 1.2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बेटा याद रखनी है। यस 1.38 × 10⁻23 जो दिया है ना, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। हम लोगों को आर का वैल्यू पता है 8314 और हम लोगों को n0 का वैल्यू पता है 6.03 × 10⁻26। तो 8.314 × 10⁻3 हो गया और ये 10⁻26 से है 10⁻3/10⁻26 इज 10⁻23 जो एकदम स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स है ना बेटा, क्योंकि वो नहीं हिल सकता, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड वैल्यू, तो रिमेंबर। पेज नंबर 2 हो गया। अब लाइन से देखते जाओ। पेज नंबर 3 पे पहले सिर्फ प्रेशर के बारे में बोला है। रीड ऑल द लिटरेचर, दे मस्ट हैव स्पोकन अबाउट बैरोमीटर, मैनोमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय 1 बार, व्हाट डू यू मीन बाय 1 टोर, एवरीथिंग चेक। 1 टोर मैं लिखना भूल गया इधर, इट इज 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 1 torr is equivalent to 1 millimeter of mercury pressure। जो बैरोमीटर में 760 मिलीमीटर होता है ना, वैसे। And this unit is mostly used in fluid mechanics। As I told you, thermodynamics is very integral part of physics। Almost everywhere thermodynamics is used in designing all the machines, right from your bike से लेके स्पेसशिप तक, सैटेलाइट्स तक, न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक, एवरीवेयर थर्मोडायनामिक्स। पेज नंबर 2 प्रेशर के बारे में पढ़ो। रीड ऑल स्मॉल डिटेल्स प्लीज। Somewhere you will come across 1 torr. Torr is a new thing for you, highlight. You will come across bar. Bar you might have heard. The word barometer is come from bar. एक छोटा सा कमेंट लिखो, Barometer is used to calculate atmospheric air pressure. Barometer is used to calculate atmospheric air pressure, whereas manometer is used to calculate gas pressure. Manometer is used to calculate gas pressure. It could be oxygen, it could be nitrogen, it could be carbon dioxide. रफ बुक में तो लिखो हीरो, घर पे जाके लिखोगे ना कि फ्रेंड की बुक से डायरेक्ट जेरोक्स मारोगे। हाइट और लेजीनेस की बात। अच्छा उसके नीचे देखो वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम के तो सारे कन्वर्जन सिखाए थे मैंने। I told you liter is a convenient unit. Liter is neither MKS nor CGS. 1 liter is 1000 centimeter cube and 1 liter is 1000th part of a meter cube. Check that. Last line on page 3. पेज नंबर 4 पे यहाँ पे हम लोग स्टॉप करने वाले हैं बेटा। अलग अलग वेरिएशंस दिए हैं आइडियल गैस इक्वेशन के। आइडियल गैस इक्वेशन ये भी है, देखते जाओ। आइडियल गैस इक्वेशन ये भी है, आइडियल गैस इक्वेशन ये भी है, आइडियल गैस इक्वेशन ये भी, राइट। अलग अलग वेरिएशंस दिए हैं। यू शुड नो ऑल दिस वेरिएशंस। रीजन वो लोग प्रॉब्लम कौन से फॉर्मेट में सेट करेंगे यू नेवर नो, तो यू शुड नो ऑल ऑफ देम। सो बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग इज दिस टाइप। बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग इज दिस टाइप, जो मैंने दिया है पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, राइट। नाउ होमवर्क फॉर द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज ऑन फ्राइडे, पेज नंबर्स 2, 3 and 4 once, एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, कॉपी मार के लिखोगे, इतना सा फायदा नहीं होने वाला है,
राइट पूरा पेज नंबर 2, 3, 4 अच्छे से रिवाइज करो, होमवर्क खुद से करो, रॉन्ग जाओगे आई डोंट माइंड, बट एट इज यू हैव रिटन इट ऑन योर ओन, डोंट जस्ट कॉपी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. Once on loose pages, on loose pages you have to write it once and submit it with your batch number and name. बुक लगाया नोटबुक, होमवर्क नोटबुक चलेगा, लेकिन ये बुक अपने को चाहिए क्लास में, ये बुक अपने को चाहिए तो सेपरेट नोटबुक, एक होमवर्क का बुक होगा, एक क्लास वर्क का बुक होगा. फेयर वर्क इज टू बी डन इन क्लास वर्क. वी स्टॉप हियर फॉर द डे. बाय बाय.